So students, we have Apurva Kumar with us. Apurva Kumar is from Uttar Kannada district in Karnataka, near Goa, near Hubli. Apurva, can I say that? Near Hubli? Near Hubli, near Goa, both will okay, sir. Okay. And Apurva is scoring 695 this year, 695. And first attempt, Apurva had joined our Achiever batch, practiced a lot of questions. So let's start. Apurva, thank you very much for your time. So I want to know from you, what is the secret of your success? There is no secret behind my success. I have done what many people are doing, like reading NCERT, doing MCQ question practice, and attempting all the mock tests given to me. Acha. Okay. So, what I want to know from you is, are you very consistent in what you do? What I hear from a lot of students who score well is, they will not study a lot every day, but however much they will study every day, right? Yes. So that was the case with you also. Yes, sir. Every day I was doing bit by bit, and at end I have done. You can see my results. Every day, little bit is necessary. We cannot skip a day without studying. Okay. So tell me about this question practice. So you practice. Let me share screen with students, and let me share with them how many questions you had practiced. So this is your screen. So students, if I click on number of MCQs practice, so Apurva practiced 29,000 MCQs. So Apurva, when did you join Achievers batch last year? It's March. This year only March. This year March. So March, April, May, June, July, August, 6 months. 6 months, 30,000 questions. Extraordinary. So student, 30,000 questions. And second thing is test attempts. So these are not only these full duration tests. This include target tests, mini test. You can generate DPP tests, and of course, then there are these small things like super revision, mechanical. You were attending super revision sessions as well towards the end, right? Yes, sir. Some questions I was attempting from that also. Very good. So in the end, you attempted close to 550 tests. This include all type of tests. If you go to neetprep.com, you will find a lot of tests. So he attempted 550 tests, which I believe is a very good number. So Purva, एक चीज बताओ. Let me ask you in Hindi. तो बच्चों के साथ होता क्या है कि थ्योरी पढ़ लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में है ना लेजीनेस होती है, डर लगता है. तो आपको भी ये प्रॉब्लम होता था शुरू में? क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना आप नीट क्रैक ही नहीं कर सकते. आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही, और मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस थ्योरी से ज्यादा अच्छा लगता था. अच्छा, फिर थ्योरी पढ़ने में उतना मजा नहीं आता था. क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिजिक्स में तो मैं क्वेश्चन ही बनाता था सर. फिजिक्स में. और आप मुझे बता रहे थे आपका बायो इतना अच्छा नहीं था, पर बायो यहाँ से प्रैक्टिस कर करके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इधर अच्छा हो गया. हाँ सर. अच्छा, क्या प्रॉब्लम था बायो में? आपको याद करने में तकलीफ होता है? तो बायो में क्या था ना कि मतलब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता था, दो में होता था, या दो में डाउट रहता था कि ये होगा कि ये होगा. आप मतलब कोर्स में क्या हुआ कि पता चल, मतलब उस समय आंसर देते थे तो पता चल जाता था कि ये कैसे नहीं होगा. तो उससे मतलब आगे बढ़ते गए कि ये कैसे एलिमिनेट करने का ऑप्शन है, दो ऑप्शन बच जाता है तो कैसे एलिमिनेट करे, वो सीखने को मिला सर. अच्छा, बहुत बढ़िया. तो आप उत्तर कन्नड़ा से हो, तो आसपास घर के आसपास मिठाइयाँ बट रहा है अभी, या मिठाइयाँ बटना चालू नहीं हुआ है? फ्रेंड्स को थोड़ा दिया है. ओके, ठीक है. मुझे एक चीज बताओ, ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का आदत है शुरू से था, या आपको भी कभी डर लगा और धीमे धीमे कंफर्ट आया? सर शुरू से थोड़ा थोड़ा था, लेकिन बीच में मतलब ऑलमोस्ट 0 हो गया था. फिर से वापस शुरू किए सर. वापस पापा भी साथ में बोले कि थोड़ा करते रहो तो हो गया. फिर एक बन जाते, एक बस मतलब एक फ्लो बन गया, तो करते गए. फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आ जाता था. क्वेश्चन प्रैक्टिस, यार उसमें होता क्या है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, सही होता है तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, सिस्टम एक्नॉलेजमेंट देता है कि हाँ
तुम्हें कुछ आता है तभी सही हुआ होगा। वो एक्नॉलेजमेंट थ्योरी करके नहीं होता। आप खुद को टेस्ट, जब तक आप खुद को टेस्ट नहीं करते ना, तब तक वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। यस सर। So that is the challenge. So that is good, Apurva. So very good. तो मुझे अब ये बताइए कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं आप? तो जिपमर पौंडीचेरी या मौलाना आजाद। अच्छा, गुड। सो बोथ ऑफ दीज आर गुड कॉलेजेस। मौलाना आजाद, यदि आप आए तो दिल्ली में आपको हम अपने ऑफिस में पकड़ के ले आएंगे। आप हमें मिठाई भेज दीजिएगा, हम आपको दिल्ली का बहुत जबरदस्त मिठाई खिलाएंगे आपका, है ना? यस बट सर। दिस इज फैंटास्टिक यार। मतलब आपके फादर, आप मुझे बता रहे थे, वर्क्स इन काइगा न्यूक्लियर प्लांट। तो आप अकेले बच्चे हैं तो दे आर गोइंग टू मिस यू, राइट? यस सर, मिलने आ अ जाएंगे लॉट। आपसे। हाँ सर। चलो, वेरी गुड। तो मैं आपको अपूर्वा एक चीज बोलना चाहूंगा, ठीक है, एंड में। जो आपने किया है, आपके आसपास कोई डॉक्टर है आपके मोहल्ले में आसपास, या यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट वन? सर ऐसे तो पास ही में अपना टाउनशिप है, तो उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स तो रहते ही हैं, मतलब पर इस टाइप घर का के। रैंक नहीं आया होगा किसी का, कोई इतने बड़े कॉलेज नहीं गया होगा। हाँ सर, ऐसा तो नहीं है। मतलब एक दीदी है, मतलब पास में एक दीदी, वो एम्स में पढ़ी, एम्स न्यू दिल्ली से अंडर ग्रेजुएट की है। ओहो, अच्छा, ठीक है। हम्म। तो आपको दुख हो रहा होगा कि उनको बीट नहीं कर पा रहे हैं आप। हम्म। ठीक है। तो चीज ये है कि अपूर्वा, आई वांट टू टेल यू दिस थिंग। the good part about these kind of videos is a lot of people, पता नहीं कौन आपके इस वीडियो से कैसे इंस्पायर होगा, बट चीज ये है कि some people watch it, एकदम दिमाग में चीजें अनलॉक हो जाती हैं। मैं इतने सारे लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बोल रहे हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो सिलेक्शन होगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एक्चुअली इतना। तो एक चीज और बताइए, काफी सारे बच्चों का ये होता है कि रूटीन क्या होता है? तो आप रात को पढ़ते थे, दिन में ज्यादा सर मैं था? दिन में ज्यादा था सर, रात को नहीं होता था। रात को 12 o'clock तक मैं सो जाता था। ठीक है, और कितना घंटा सोते थे? 12 to 6:30, और बीच में सुबह में आधा घंटा और सोता था मैं, मतलब टोटल 7 7 घंटा। यार लोग है ना, विश्वास नहीं करते लोग। लोग को लगता है कि ये टॉपर है ना, झूठ बोल रहा है, ये 2-3 घंटे सोता होगा, दुनिया को बोलता है कि 7 घंटे सो रहा है। तो ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं है सर, मुझे भी ऐसा पहले नहीं यही लगता था। है। ठीक है। तो दिस इज गुड अपूर्वा। सो एक्सेलेंट। तो मुझे एक चीज बताइए, फाइनल एक चीज बताइए। अचीवर बैच में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, फ्लैश कार्ड है, क्वेश्चंस है, टेस्ट है, टारगेट बना सकते हो, डीपीपी। आपके लिए फेवरेट फीचर क्या था? सर फ्लैश कार्ड और डीपीपी। फ्लैश कार्ड और डीपीपी। यस सर। तो फ्लैश कार्ड किसी भी टाइम पे कर सकते हो, पॉट पे बैठे हो तो भी फोन को घुमा रहे हो और आराम से प्रैक्टिस हो जाता है। हाँ, हाँ, सोने से भी पहले कभी कभी फोन को स्क्रॉल करते करते फ्लैश कार्ड चालू कर लेते थे। was very good. I can tell you this, मेरे आईटी में जाने के बाद हमारी फैमिली में 5-6 लोग और पहुंच गए कि वो कपिल भैया गए थे, तो आपका भी हो सकता है। तो इसी तरीके से है ना, आपसे भी इंस्पायर होके बहुत सारे लोग पहुंचेंगे, है ना? यस। तो यू हैव नाउ बिकम एन इंस्पिरेशन इन द एरिया अराउंड यू, विच इज फैंटास्टिक। सो कंग्रेचुलेशन। यदि आप मौलाना थैंक यू। आजाद आए तो आपसे मिलना होगा, और आप जिप्मर गए तो फिर मैं पौंडीचेरी घूमने आऊंगा और आपसे मिलूंगा। ठीक है? यस सर। चलिए यस सर। अपूर्वा, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।